नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने राज्य सरकार की आलोचना। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने हाल ही में बीदर में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे को विभिन्न मांगों का एक पत्र सौंपा। यह विरोध सौतेले व्यवहार के खिलाफ है। केंद्र के फंड वितरण पर कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया का कहना। केएसआरटीसी ने मैसूर बेंगलुरु के बीच नई अश्वमेध सेवा शुरू की। ओएनजीसी एमआरपीएल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का लोगो लॉन्च किया गया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य की कांग्रेस सरकार विफल रहने का आरोप पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रभु चौहान ने लगाया। वह आज बीदर शहर में पत्रिका भवन में प्रेस मीट के दौरान राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रहे थे। इस मौके पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार और भाजपा के जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल सहित अन्य भाजपा नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। निषेध कानून जारी ಮಾಡಿದೀನಿ। ಈಗೂ ತೋಡ್ರಿ ಖುಲ್ಲೆಆಮ್ ಕತ್ಲೆಆಮ್ ಕಸಾಯಿಖಾನಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಯಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ನಾನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾನುವಾರು ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈತರ ಮಗ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗ। ಇವು ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಇವತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ತಾವು 700 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ। ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೇನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೋಶಾಲಾ 28 ಗೋಶಾಲಾ, ಒಂದು ಗೋಶಾಲಾಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರಿ। ಗೋಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೈ ಮಜಬೂತ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ತಾವು ಇವತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ। ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಯಾವ ತರ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು, ತಾವು 6 ಕೋಟಿ ಜನತಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಧೋಕಾ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಓಕೆ। ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ತಾವು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದೀವಿ। ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ। ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತ ಯೋಜನೆ ಅಂತರ್ಗತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜನ್ಮದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದತ್ತ ಯೋಜನೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। 27 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೇ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ। 27 ಕೋಟಿ 200 ಗೋಶಾಲಾ ಇದೆ, ಅಡುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ತಾವಿಗೋದಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಆಮೇಲೆ 160 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು 160 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತು ಪ್ಲಾನ್, ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅವರು 100%, ಬಟ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲ್ದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೀನಿ। ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು 1962
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ और 60-40 1962 ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1962 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ? ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೀಮೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಷೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿವೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪೀರಪ್ಪ ಔರಾದೆ ಯರ್ನಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಕ್ಯಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಔರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಹಸೂರೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜ ಔರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂವರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮೂವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್. 3 ಜನನೇ ಸರ್, 3 ಜನ. ಹಾಂ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಮೂವರು ಇವರು. ಮಾಧವ್ ಹಸೂರೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನು, ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮ್ಯಾನ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಕ್ಯಾಳ್ ಔರಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಪ್ಪ ಔರಾದೆ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಯರ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಕ್ಯಾಳ್ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜ, ಹಾಗೂ ಮಾಧವ್ ಹಸೂರೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ UPA ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಡ್ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ UPA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. UPA 2 ಬಂದು 2004 to 14 ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ 2.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದೆಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೆವು. ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ 60,000 2.36 ಲಕ್ಷ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಮ್ಮ. 2.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 243% ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ ಬಂತು. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡ್ಲತ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು. ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ UPA 1-2 ನೀಡಿದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದಾನ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ 81,000 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ 9 years, ಈಗ 9.5 years ಆಗ್ಯದ, 2.82 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 246% ಅಧಿಕ ಅನುದಾನ. ಇದು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. GST ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಇದು ಸಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮರ್ಮ ಅದ. राज्य सरकार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने मांग की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जल्द से जल्द 7वें वेतन आयोग की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाए। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंदगे ने के नेतृत्व में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली को अलग अलग याचिका पत्र सौंपा गया। एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री उन पर एसोसिएशन की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाए कि आरोग्य संजीवनी योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वह 2024-25 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ 7 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, यह केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के खिलाफ विरोध है, तब भी जब राज्य में सूखा पड़ा था। इसलिए हमने 7 फरवरी को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। हम यह नहीं कहते हैं कि उत्तर भारतीय राज्य को मत दो, हम पूछ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए और हमें क्या दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए। भाजपा नेता और बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई या किसी अन्य को इस पर बोलना चाहिए। हमारे पास राज्य से सांसद और मंत्री हैं, जिनमें प्रहलाद जोशी भी शामिल हैं, लेकिन संसद में किसी ने नहीं बोला। क्या यह राज्य के साथ अन्याय नहीं है? लोगों को क्या करना चाहिए? हमें फंड नहीं दिया गया है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा आवंटित किया गया होगा और हमें दिया गया होगा। मैं राज्य के भाजपा सांसदों से भी विरोध करने के लिए आने के लिए कह रहा हूं। इसके अलावा सीएम ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सूखे की स्थिति के बीच राज्य की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी द्वारा 100 नई अश्वमेध बसों को हरी झंडी दिखाई, जिन्हें बेंगलुरु से मैसूर मार्ग पर सेवा के लिए नामित किया गया है। उद्घाटन बेंगलुरु में विधानसौधा के सामने हुआ, जहां राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज विधानसौधा के सामने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आयोजित एक समारोह में 100 नई डिजाइन वाली कर्नाटक परिवहन बसों अश्वमेध पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। परिवहन निगम ने आज से दोनों शहरों के बीच अश्वमेध पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेस बस सेवा शुरू की। टीम मैंगलोर द्वारा आयोजित ओएनजीसी MRPL अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का लोगो विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने मंगलूर में लॉन्च किया। पतंग महोत्सव 10 और 11 फरवरी को तन्नीर बावी समुद्र तट पर आयोजित होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का लोगो स्वतंत्रता, सहजता और उत्सव की भावना को दर्शाता है। टीम मैंगलोर के सर्वेश राव ने कहा, तालमेल के साथ उड़ने वाली रंग बिरंगी पतंगे विभिन्न देशों के पतंगबाजों द्वारा पोषित एक आकाश, एक पृथ्वी, एक परिवार के विश्वास के साथ क्षेत्र के संतुलित विकास को दर्शाती हैं।
8 देशों के 13 विदेशी यात्री, जिनमें 100 पहली बार आने वाले पर्यटक शामिल हैं, और 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और केरल के लगभग 20 भारतीय यात्री महोत्सव में भाग लेंगे। आयोजक टीम मैंगलोर अपनी विशेष पतंगे जैसे कथकली, यक्ष, गजेंद्र, भूतकोला, गरुड़, पुष्पक, विमान और विभीषण भी उड़ाएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई ने कहा कि मंड्या में भगवा झंडा उपद्रव कांग्रेस सरकार की साजिश। विजयपुर शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान ध्वज फहराने के लिए ग्राम पंचायत से अनुमति ली गई थी और एक ध्वज स्तंभ का निर्माण किया गया था। वह अल्पसंख्यक पक्षपात के कारण हनुमान ध्वज फहराए जाने पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने सत्ता के लिए वोट देकर ऐसा करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಇವತ್ತು ಏರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಸಿಟಿ ರವಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಪಿತೂರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಅವರು. ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ सर, खरगे और बीजेपी। इस साल कर्नाटक में क्यासानूर वन रोग से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठकें की और वायरल संक्रमण के प्रसार से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग के क्यासानूर वन रोग के एफडी, जिसे आमतौर पर बंदर बुखार के रूप में जाना जाता है, के कारण पहली मौत 8 जनवरी को शिवमोगा जिले के होसानागर तालुका में हुई थी, जिसमें एक 18 वर्षीय लड़की की
वायरस से मौत हो गई। दूसरी मौत उडुपी जिले के मणिपाल में हुई, जब चिकमंगलूर के श्रृंगेरी तालुके के 89 वर्षीय व्यक्ति की एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। अब तक राज्य में बंदर बुखार के 49 सकारात्मक मामले सामने आए हैं, जिनमें से अधिकतम 34 मामले उत्तर कन्नड़ जिले में, 12 मामले शिवमोगा में और शेष 3 चिकमंगलूर जिले से सामने आए हैं। मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य की पिछली भाजपा सरकार के दौरान कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड कियोनिक्स में अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। प्रियांक खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड में अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने 38% से 15.77% तक की बढ़ी हुई लागत पर IT ब्रह्मा उपकरणों की खरीद की। उन्होंने भाजपा पर अपने कुकर्मों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों पर अधिक भरोसा करने का भी आरोप लगाया। प्रियांक खरगे ने एक्स पर कहा, 2018-19, 2022-23 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा 45 ऑडिट आपत्तियां उठाई गई। एड भाजपा फॉर कर्नाटक सरकार ने 38% से 15.77% तक की बढ़ी हुई लागत पर IT ब्रह्मा उपकरणों की खरीद की। उन्होंने कहा, जब खरीदारी की बात आई तो बीजेपी 400% सरकार थी, न कि #40% सरकार। केवल 3% ऑडिट में 430 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी का खुलासा हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी अपने कुकर्मों से जनता का ध्यान हटाने के धार्मिक मुद्दों पर बहुत अधिक भरोसा करती है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के संसद भाषण का जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा कि वह जानबूझकर एक राज्य को धन आवंटित करना बंद नहीं कर सकती है। शिवकुमार ने वित्त मंत्री को बुद्धिमान कहा और पूछा कि वादा करने के बाद उन्होंने ऊपरी भद्रा सिंचाई परियोजना के लिए धन क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के पास अपने कार्यालय की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को धन आवंटित करने की सभी शक्तियां होंगी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के बारे में कई चीजों को नजरअंदाज किया है। मैं विशिष्ट रूप से आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव से पहले निर्मला सीतारामन जी ने कर्नाटक में महत्वपूर्ण ऊपरी भद्रा सिंचाई परियोजना के लिए 5,300 करोड़ की घोषणा की थी। उसने आज तक वह धनराशि जारी क्यों नहीं की? क्या वह कृपया इसका उत्तर दे सकती हैं? शिवकुमार ने यह भी कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। निर्मला जी कर्नाटक से हैं और वह एक बुद्धिमान मंत्री हैं। उन्हें अपने राज्य के बारे में सोचने की जरूरत है और कोई भी उन्हें अपने राज्य से किए गए वादों को पूरा करने से नहीं रोकेगा। वित्त मंत्री के पास सिफारिशों के आधार पर धन जारी करने की शक्ति है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने राज्य सरकार की आलोचना। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने हाल ही में बीदर में जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे को विभिन्न मांगों का एक पत्र सौंपा। यह विरोध सौतेले व्यवहार के खिलाफ है। केंद्र के फंड वितरण पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का कहना। KSRTC ने मैसूर बेंगलुरु के बीच नई अश्वमेध सेवा शुरू की। ONGC MRPL अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का लोगो लॉन्च किया गया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।